Hi kids, welcome to your English class and I'm your digital teacher and mentor Ananya. Today we are going to start a new topic of this book. We are going to begin with lesson number 2, that is nouns. So in today's chapter we are going to explore more about nouns. So what are we waiting for? Let's begin our journey. Before we proceed, let's quickly do this warm-up exercise. Read the introduction of a story given below. Circle the proper nouns and underline the common nouns. Remember children, जब हम किसी को किसी नाम से बुलाते हैं तो उन नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन्स बोलते हैं. नाउन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं. हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में. कोई भी नाम जो हम जनरली किसी पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, एनिमल को देते हैं दैट इज़ अ कॉमन नाउन. लेकिन जब हम किसी का कोई स्पेशल नाम रखते हैं जो किसी और का ना हो या दूसरों से अलग हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, राइट? तो in today's warm-up exercise, we need to circle the proper nouns and underline the common nouns. इसका मतलब जितने भी स्पेशल नेम्स हैं उन्हें हमें सर्कल करना है और जो जनरल नेम्स हैं उन्हें हमें अंडरलाइन करना है. So let's begin. Harry had never even imagined such a strange and beautiful place. So Harry इज अ प्रॉपर नाउन क्योंकि ये एक स्पेशल नेम है किसी बॉय का. इट वॉज लिट बाय टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैंडल्स. कैंडल्स इज कॉमन नाउन. दैट वर फ्लोटिंग इन मिड एयर ओवर 4 लॉन्ग टेबल्स वेयर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर सिटिंग. These tables were laid with glittering golden plates and goblets. At the top of the hall was another long table where the teachers were sitting. Professor McGonagall led the first years up here. Now this is a special name, a specific particular name of a professor, so that they came to a halt in a line facing the other students with the teachers behind them. So I hope you have understood how to find out the common nouns and the proper nouns. All right? So in this way, you have to complete this warm-up exercise. I hope you have done this along with me. Now let's begin the chapter. All naming words are called nouns. They name people, places, animals or things. हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सभी नाउन्स कहलाते हैं. नाउन्स बेसिकली क्या करते हैं? ये पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इन सभी को एक नाम देते हैं ताकि हम इन्हें पहचान सकें. पर्सन, द टीचर इज टीचिंग हिज स्टूडेंट्स. सो जो पढ़ाता है उसको हम क्या कहते हैं? टीचर. और जो पढ़ रहा है उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स. सो ये दोनों नेमिंग वर्ड्स हैं. द वर्ड्स टीचर एंड स्टूडेंट्स आर द नेम्स ऑफ पीपल. एनिमल, the cat has attacked a mouse. The words cat and mouse are the names of animals. Place, Delhi is a big city. Delhi and city are the names of places. Thing, we eat biscuits with tea. हम biscuits चाय के साथ खाते हैं. The word biscuits and tea are the name of things. Feeling, anger is not good for you. गुस्सा करना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है. The word anger is the name of a feeling. Action, let us have a race. The word race
is the name of an action. When a person, place, animal or thing is given a special name, it is called a proper noun. यानी जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु यानी कोई भी चीज़ हो, किसी एनिमल या किसी जगह का कोई अलग से स्पेसिफिक स्पेशल नेम देते हैं, नाम रखते हैं, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. लाइक दीपक, दिल्ली, ताजमहल, इंडिया गेट, ये सब ही स्पेशल नेम्स हैं. व्हेन अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग हैज़ अ जेनरिक नेम, इट इज़ कॉल्ड अ कॉमन नाउन. यानी जब हम किसी का जनरल या कोई कॉमन नाम रख देते हैं जो कि कॉमन फॉर ऑल है. फॉर एग्जाम्पल मैन, कोई भी आदमी हो सकता है. सिटी, कोई भी शहर हो सकता है. बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है. ठीक है. सो नाउ चिल्ड्रन, लेट्स मूव फर्दर. इट्स टाइम टू डू द एक्सरसाइजेस. सो लेट्स बिगिन विद टेस्ट योरसेल्फ. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to do exercise number A. Here are pictures of nouns. You can see different nouns and the pictures are given here. Write each noun in its own column. So what we have to do, you can see a table is given. Alright. Now here we have people, then animals, then places and last things. We need to add the करेक्ट नाउन अंडर द करेक्ट कैटेगरी. यानी अगर पीपल या पर्सन के नेम है तो हम यहाँ पीपल के नीचे डालेंगे. अगर एनिमल का नेम है तो फिर हम एनिमल के नीचे लिखेंगे. और अगर प्लेस यानी जगह का नाम है तो हम यहाँ प्लेसेस के नीचे लिखेंगे. अगर कोई ऑब्जेक्ट या थिंग है तो फिर उसे हम थिंग्स के नीचे लिस्ट करेंगे. सो शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पिक्चर. दिस इज अ ज़ेब्रा. नाउ अ ज़ेब्रा इज अ एनिमल. ठीक है. तो एनिमल्स कैटेगरी यहाँ है तो हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर इसे लिखेंगे. लेट्स राइट ज़ेब्रा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर. इट्स अ पेन. यानी एक चीज़ है जिससे हम लिख सकते हैं. ओके. इट इज़ एन ऑब्जेक्ट विच हेल्प्स अस टू राइट. तो थिंग्स के अंडर हम पेन को लिस्ट करेंगे. सो वी विल राइट पेन हेयर. नेक्स्ट इज अ पिक्चर ऑफ नर्स. नर्स कौन है? नर्स बेसिकली हॉस्पिटल में काम करते हैं और वो जो बीमार लोग होते हैं उनका देखभाल करते हैं. ठीक है. सो we will write nurse under people. Next, ox. Ox is an animal. So हम animals के नीचे जो कॉलम है वहाँ पर हम ox लिखेंगे. Alright. Let's take the next picture. Book. Book एक thing है, object है. So हम इसे यहाँ things के नीचे लिखेंगे. Okay. Then church. Church is a place of worship. Okay. तो इसे हम place में लिखेंगे. Next, soldier. Soldier is a person who basically protects the country. So we are going to write soldier under the category of people. नेक्स्ट पिक्चर इज होम. होम इज अ प्लेस. एक ऐसी जगह जहां हम रहते हैं. सो होम विल कम अंडर प्लेसेस. तो देखा आपने बच्चों कि किस तरीके से हमें पिक्चर को ध्यान से देखना है, समझना है और फिर करेक्ट कैटेगरी के अंदर लिस्ट आउट करना है. सो सम आई हैव डन फॉर यू. द रिमेनिंग 4 पिक्चर्स you are going to do on your own. I am sure you can do this very easily. Now let's move ahead. We will start with exercise B now. Write the nouns naming 4 people.
यानी आपको ऐसे 4 नाउन लिखने हैं जो कि किसी इंसान का नाम बता रहे हों. ओके, so you can write any 4 names. You can write the name of your family members. You can write the name of your cousins. You can write the name of your friends. तो आप यहाँ पे अपने पसंद के 4 नाम लिख सकते हैं. For example, I can write Suman, Geeta, Ram, Ritu. Alright? Then you have to write the names of 4 animals. आपको 4 animals के नाम लिखने हैं. आप कोई भी 4 animals ले सकते हैं. You can write lion. You can write elephant. You can write bear. You can write ox. ऑलराइट, आप और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं. आप अपनी चॉइस के कोई भी 4 एनिमल्स का नाम लिख सकते हैं. नेक्स्ट वी नीड टू राइट नेम्स ऑफ 4 प्लेसेस. तो आप अपने पसंद के कोई भी नाम लिख सकते हैं. लाइक यू कैन राइट दिल्ली, देन यू कैन राइट मुंबई, देन यू कैन राइट टेम्पल, then you can write park. Okay, now again you have to name 4 things. कोई 4 ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स के नाम आपको यहाँ जो स्पेस दिया गया है वहाँ लिखना है. You can write pen, paper, pencil, box. All right, so in this way you can write different names of objects. आप कोई भी आपके पसंद के 4 ऑब्जेक्ट्स के नाम लिख सकते हैं. आप टेबल, चेयर, डोर, बेड, कोई भी अपने पसंद के 4 ऑब्जेक्ट्स के नाम या 4 चीज़ों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं. नेक्स्ट 4 फीलिंग्स. 4 फीलिंग्स के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है. जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, एंग्री, इस तरह के कोई भी 4 फीलिंग्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं. ऑलराइट, सो this you have to do on your own. I have done the first 4 things for you. Next, this 4 feelings you would be writing on your own. आप जैसा भी फील करते हैं आप यहाँ पर 4 फीलिंग्स के नाम लिख सकते हैं. Alright, now let's come to exercise number C. Circle the words that are nouns. यहाँ एक टेबल है, बहुत सारे वर्ड्स है. यहाँ पे आपको उन सभी वर्ड्स को सर्कल करना है जो कि नाउन्स है. और हमने पढ़ा है कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स. सो वी आर गोइंग टू सर्कल ऑल द नेमिंग वर्ड्स इन दिस टेबल. रन, नो. बेड, yes. Over, no. Orange, yes. Park, yes. It, no. Car, yes. Read, no. Ankle, yes. Weep, no. Bench, yes. Queen, yes, it is a noun. Eat, no. Grass, then lion. Kill, no. Swim, no. Bus, yes. So I hope children you have understood how to do this exercise. Now let's move to exercise number D. Read the given sentences and circle the proper nouns and underline the common nouns. यहाँ पर कुछ sentences दिए गए हैं. हमें इन sentences को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद जितने भी proper nouns हैं उन्हें हमें सर्कल करना है
और जितने भी कॉमन नाउन्स हमें इन सेंटेंसेस में देखने के लिए मिलेंगे उन्हें हमें अंडरलाइन करना है। तो आइए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। आवर फैमिली वेंट टू आगरा टू सी द ताज महल। ओके, सो फैमिली इज अ कॉमन नाउन, ऑलराइट। वेंट टू आगरा, आगरा इज अ नेम ऑफ अ सिटी। तो यहाँ ये एक स्पेशल नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है, हमने अंडरलाइन कर दिया। और आगरा क्यों गए? टू सी द ताजमहल। ताजमहल इज अ वेरी वेरी फेमस मॉन्यूमेंट। तो हम ताजमहल को सर्कल करेंगे बिकॉज इट इज अ प्रॉपर नाउन। ओके, सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। मेरे कुछ दोस्त मुंबई जा रहे हैं अगले महीने। सो फ्रेंड्स कॉमन नाउन है, क्योंकि यहाँ जनरली सब फ्रेंड्स की बात हो रही है जो मुंबई जा रहे हैं। हमने हर एक फ्रेंड का नाम नहीं लिखा। कहाँ जा रहे हैं? वो मुंबई जा रहे हैं। मुंबई इज अ स्पेशल नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर सिटी। सो मुंबई को हम यहाँ पर सर्कल करेंगे। ऑलराइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो चिल्ड्रन, I have done 2 sentences for you as example. You are now going to find out the proper and common nouns in the remaining sentences. Sentence number 3, 4, 5 and 6 are to be done on your own. बिल्कुल जैसे हमने सेंटेंस नंबर 1 और 2 को किया है उसी तरह आपको सेंटेंस नंबर 3, 4, 5 और 6 को भी करना है। ओके, now it's activity time. Let us find out what activity is in store for us. Names of our body parts are all common nouns. Look at the pictures and write the correct common nouns. हमारे जो body parts हैं उनके जो नाम हैं उन्हें हम common nouns में categorize करते हैं। आपको यहाँ कुछ body parts के pictures दिए गए हैं। आपको इन सभी बॉडी पार्ट्स के नाम को इस गिवन स्पेस में लिखना है। लाइक वी सी विद अवर आईज, ठीक है। सिमिलरली वी हियर विद अवर ईयर्स, वी स्मेल विद अवर नोज। So in this way, you need to complete this particular activity. Observe the pictures carefully and then complete these given spaces. So I hope children, you can do it easily. So do this exercise on your own. With this children, we are done for today's topic. I hope you have understood the concept of nouns clearly. And now you can easily pick out nouns from any given sentence or any given passage. So with this children, I am your teacher Ananya signing off for today. I will meet you again very soon with some new and interesting chapters of your book. So stay tuned for the upcoming videos. Till then, do take good care of yourself. Bye bye.